Good morning, students. Again, we will discuss about the statistics. Yesterday, we were discussing about the primary data and secondary data. Now, how to collect the primary data, it is very important. And the investigator plays a vital role in order to collect the primary data to get the true information. It is very necessary and it is required. The accurate data should be collected. The several methods are used. The surveys, door-to-door survey, person-to-person survey, direct, because the data so collected by the questionnaire method, it is accurate one. And for the purpose of accuracy of data, that is collecting the data, the questionnaire good questions should be asked to the respondent. So it depends upon the designing of the questionnaires, drafting of the questionnaires, and one should be clear about the questions. The designing depends on the skill of the investigator. A good deal of skill. Logical questions should be asked. Intelligence as well as the experience. It is very important. So, while preparing or drafting the questionnaires, the certain points should be considered or should be kept in the mind. क्वेश्चनियर्स कैसे बनाएंगे उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट. मैं आपको बाद में एक क्वेश्चंस जो यूजुअली सर्वे में दिए आते हैं जनरल ड्राफ्ट, मैं आपको देने की कोशिश करूंगा उसको. सी द वेरी फर्स्ट इज द कवरिंग लेटर. यस, with the questionnaires are questions are being prepared, it is drafted, so it is sent to the respondent. While sending it to the respondent, the one covering letter with the question upon the questions should be covered, should be attached. एक कवरिंग लेटर, एक इंफॉर्मेटिव लेटर that to that respondent should be sent, assuring him that whatever information he will give or her will give, she will give, that will become confidential, that will not be disclosed before any person. So all data are safe and confidential. ये एश्योरेंस देना पड़ेगा. And not only the covering letter with the questionnaires, the one self-addressed envelope should also be attached in it, and then it is sent to the respondent. The covering letter is very important factor. भाई अब क्यों खर्च करेगा वो, आपको इन्फॉर्मेशन क्यों देगा, आप उसको भेजोगे, आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, फिर आपको भेजेगा वो, तो उस पर अपना सेल्फ एड्रेस लेटर भी तो होना चाहिए, एनवेलप होना चाहिए अलॉन्ग विद स्टैम्प. तो खर्च नहीं करेगा वो पैसा, अदरवाइज विल अवॉइड टू सेंड और रिस्पॉन्ड यू. सो कवरिंग लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज द लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. यस, इन द क्वेश्चनियर्स as you are requiring the certain information from the respondent, in that question how many questions should be asked to the respondent. A few questions if you are asking you will not get the adequate informations, but if a large number of questions are there, the respondent will avoid to respond, you will not
answer will not respond you. So the limited number must be there. It should not be hectic. वो परेशान भी ना हो. And usually it is in the ideal questionnaires 15 to 25 questions may be asked or should be asked, not more than that. That is called limited number of questions. For the convenience to the respondent as well as the investigator, the questions given in the questionnaire should be numbered. Numbering of questions. If the questions are numbered, so it is very easy to locate the answers of that particular number of questions. जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, उसकी नंबरिंग होती है, वैसे ही इसमें नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस. Clarity. The questions in the questionnaire should be clear. The clarity means that should not be ambiguous. That should not be confusing. वो confusing क्वेश्चन का नहीं होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन इसका मतलब ये भी निकल रहा है, इसका मतलब ये भी निकल रहा. नो. Ambiguous मतलब दोहरे अर्थ से निकलते हो, दो मीनिंग ना निकलती हो. तो ये बेटर है कि क्वेश्चन शुड बी क्लियर. जो क्वेश्चन पूछा है ना वो एकदम साफ और क्लियर हो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. रिस्पॉन्डेंट नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा. जो आंसर आपको चाहिए, वट एवर इंफॉर्मेशन यू वांटेड टू कलेक्ट फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट will fail to give you, will not give you. Next is logical arrangement of questions. Questions should be logically arranged. मतलब किस क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए वो लॉजिकली सेट होना चाहिए, इलॉजिकली सेट नहीं होना चाहिए. जैसे कहा जाए ऐसे ही कि क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन ये आ गया कि आपके कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, और उसके बाद क्वेश्चन किया जाए क्या आर यू मैरिड. इज इट लॉजिकल? नो, इट्स नॉट लॉजिकल. अरे मैरिड होगा तभी उसके बच्चे होंगे. तो फर्स्ट यू क्वेश्चन शुड बी योर marital status, that marital status, then after kids. Otherwise that is become illogical. So that require the experience while drafting the question. Avoiding certain types of questions. Some questions are there which are very personal, and one avoid to respond or answer it. कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही पर्सनल होते हैं, जैसे रिलीजियस मैटर के क्वेश्चंस बहुत ही पर्सनल है कि आप किस रिलीजन को पसंद करते हैं, आपको क्यों पसंद है, क्या है. डोंट आस्क, अवॉइड इट. या किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में आपको ये पूछते हैं कि आपके अपने बच्चों से पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है. आर यू हैप्पी विथ योर फैमिली, आर यू हैप्पी विथ योर मैरिज लाइफ. डोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. This is very personal questions, so it should be avoided. Next is the objectivity of questions. Objectivity. The objectivity of questions means, so whatever the questions asked, that should be framed in such manner that should be answered in the factual objective. Factual or objectives. And the respondent must be able to answer it in the yes or no. केवल हाँ और ना में आंसर दे सके, इस तरीके के क्वेश्चंस होना चाहिए. वो इजी आंसर्स है. अवॉइड to ask the long answering questions. Sometimes it may be of one line, but there should not be a big script. The answering का script बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. Now, definiteness of answer. The questions asked to the respondent, that should be answerable. एक निश्चितता होनी चाहिए, डेफिनेटनेस होनी चाहिए.
इनडेफिनिट आंसर की उसका कोई आंसर हो ही नहीं सकता, या कोई कौन सा आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसकी एक डेफिनेटनेस होनी जरूरी है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, उसका डेफिनेट आंसर दे पाए वो। कैपुला ब्रीफ आंसर, द क्वेश्चन आस्क्ड टू द रिस्पोंडेंट, द आंसर शुड नॉट बी सो लार्ज, so respondent must be able to answer in brief. As I've already explained you, that should be in brief, यदि this yes or no or true or false, or sometime a single line can be stated. That is called brief. No long script answer should be asked. Impartial. Question should be asked which can be answered impartially. दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। इम्पार्शियल क्वेश्चन, या आप किसी पूछिए आपने पिछले चुनाव में वोट किसको दिया, क्यों दिया। अलग अलग लोगों की थॉट्स हो सकती है, मेंटेलिटी हो सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड, दैट शुड बी अवॉइडेड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल ड्राफ्टिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, पहली चीज कवरिंग लेटर एक अटैच कीजिए जो क्वेश्चनियर है, उसके में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होंगे, उस लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में क्वेश्चन कैसी होने चाहिए, तो क्वेश्चंस की नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, लॉजिकली अरेंज होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस जो पर्सनल नेचर के होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चन दैट शुड बी आंसर्ड इन द यस और नो और ट्रू और फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन की आंसर होना चाहिए। डेफिनेटनेस, क्वेश्चन का आंसर होने ही चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछा सकता है जो उसका आंसर ना हो। कैपेबल ऑफ ब्रीफ आंसर, आंसरिंग ब्रीफ में होनी चाहिए, एक पार्शियल होना चाहिए। ये अभी तक देखा हमने। नाउ अवॉइडिंग क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। If one have drafted the questions where one have to make some calculation that is so hectic and the respondent will not respond, वो क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो। जैसे अब आपकी जो सैलरी उस पर आपने टैक्स कितना पे किया, कैसे पे किया, अब टैक्स का कैलकुलेट है, कैश कितना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, तो कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा आपको, तो वो अवॉइड करना चाहिए। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कैलकुलेशंस होनी चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उसमें देखेंगे अवॉइडिंग क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग स्ट्रेन, जिस पर बहुत जोर पड़ता हो। बहुत सी चीजें होती हैं जो आदमी भूल चुका होता है, ध्यान नहीं है, बहुत पहले हुआ था। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया, क्या आप बचपन में किसी से बहुत बुरी तरह से लड़े थे तो किससे लड़े थे, पता नहीं किससे लड़े थे, दिमाग में जोर दे तब नहीं याद आएगा लड़े थे कि नहीं लड़े थे। लड़े थे तो किससे लड़े थे, बहुत से लोगों से हम लड़ते रहते हैं, है ना, आप लोग भी लड़े होंगे। तो वो लड़ते रहते हैं, उसको याद करना मुश्किल काम है, किससे किससे लड़े थे, किससे कुछ अच्छी लैंग्वेज भी बोले थे। अच्छी लैंग्वेज समझ गए होंगे आप लोग, वेरी गुड। एडजेक्टिव वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, एडजेक्टिव वाले जो आपने वर्ड्स यूज किए हैं दैट शुड बी अवॉइडेड। वो याद नहीं आएगा कि स्ट्रेन पड़ेगा आपको कि क्या क्या आपने बोला। प्री टेस्टिंग,
वंस द क्वेश्चनियर्स बीइंग ड्राफ्टेड, एक बार क्वेश्चन ड्राफ्ट हो गया, बन गया, अब उसको फील्ड में सर्वे में ले आना है, लोगों को से पूछना है, तो उसकी एक टेस्टिंग भी तो होनी चाहिए कि क्वेश्चंस की टेस्टिंग कैसे की जाए, लोग उसका जवाब देंगे कि नहीं, देन दैट इज कॉल्ड पायलट सर्वे। प्री टेस्टिंग इज कॉल्ड पायलट सर्वे, मीन दैट क्वेश्चनियर्स आर गिवन टू द फ्यू पीपल, एक सैंपल ऑफ पीपल शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनको दिए आते हैं, उनको ये क्वेश्चनियर्स दिए जाएंगे एंड देन बीइंग रिस्पॉन्डेड दे हैव टू आंसर। So what is the response of that questions which being drafted? Is there any problem in the questions or answering? And then after, if any feedback they are getting, then accordingly the questions will be readjusted or redrafted. उसको दोबारा बनाया सकता है। Cross checks. Cross checking is very important thing. While answering the questions, so many questions are there, one may fail or one may forget the answers have been given, which answer have been given. So that should be cross checked. That is, if you ask, the question is there, what is your age? And then can be cross checked by asking what is your date of birth. वो पूछा सकता है, तो वो क्रॉस चेक हो जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर के और आज की डेट तक का अपने एज काउंट हो सकते हैं। वहां पर एज आपने क्या लिखी, डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा, क्योंकि कुछ लोग अंदाज से पूछ भर सकते हैं, तो मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन गलत मिल रही। तो वो एक क्रॉस चेक होता है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन के हो सकते हैं। दिस इज द अट्रैक्टिव लेआउट। क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया, लेआउट उसका सुंदर होना चाहिए, दिखने में लगे कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, लेआउट उसका अच्छा होना चाहिए, प्रिंट अच्छी होनी चाहिए, डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, लेजिबल वर्ड्स होने चाहिए। जो आपने प्रिंट निकाले हैं उसके फॉन्ट कितने होने चाहिए, वो एक लेआउट की फॉर्मेट में कहा जाता है। फिर पैराग्राफ वाइज होते हैं, एक पैरेलल सिस्टमेटिकली अरेंज किए होते हैं, मार्जिन होती है दोनों तरफ, तो इस तरीके होने चाहिए, बिना मार्जिन के, चाहे जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक कवर कर दिया आपने पूरा, हेडर और फुटर भी देखना पड़ेगा आपको, तो एक लेआउट बनाते हैं। दैट शुड बी अट्रैक्टिव वन। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। When the questionnaires are sent, that should be sent along with the certain instructions. And while what is written in that instruction, it is written, there should not be any doubt. कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Whatever information, what type of the information being asked or that is desired by the investigator from the respondent, उसमें वो लिखा आता है कि इन माई व्यू और इन माई ओपिनियन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट, और उसमें साइन होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं, वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सही और सत्य है, वो दिखना पड़ेगा। नाउ फॉर्मेट ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि वो क्वेश्चन कैसे बनाए जाए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे लिखे जाए। कोई तरह के क्वेश्चंस होंगे, कई तरह के क्वेश्चंस होंगे, उन कई तरह के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स में, कुछ क्वेश्चन यस नो में ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, वो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं फॉर्मेट में, सिंपल एंड अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस और उसका अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव क्या होगा, एक सरल क्वेश्चन पूछा गया, यस ऑब्लिक नो और राइट और रॉन्ग
और ट्रू और फॉल्स वटेवर। सिंपल। अल्टरनेटिव क्या है, यस है, नो है, जो भी ये इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए। आप फॉर्म भरते समय देखा होगा आप लोगों ने, कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे यस और नो वाले। दैट इज सिंपल एंड सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अब जैसे पूछा गया आर यू मैरिड, ठीक, यस और नो। आर यू ग्रेजुएट, यस और नो। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो वो अल्टरनेटिव क्वेश्चन के साथ सिंपल। अगर आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या कुछ टिक मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल्स, तो ये पूछा गया, उस पर टिक मार्क कर दो। ऐसे क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने, फॉर्म में भी होते हैं, वो भरने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज आस्क्ड, द सर्टेन आंसर्स हैव बीन गिवन, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिव आंसर्स। उसमें से एक सही होगा, बाकी तीन आपके लिए ठीक हो सकता है, ना हो। वो चार ऑप्शंस दिए जाते हैं केबीसी की तरह। वो चार ऑप्शंस में आपको एक टिक करना है, कोई एक टिक करना होगा। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस एज गिवन इन योर बुक, मैरिड, अनमैरिड, डाइवर्स, विडो। ये चार है। मैरिड है, मेरे शादी हो चुकी थी, अनमैरिड, शादी अभी तक नहीं हुई, डाइवोर्स है, शादी हुई थी लेकिन अब अलग हो चुके हैं, विडो यानी कि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ये चार ऑप्शन में कोई हो सकता है, इट मे हैपन। तो आपको इसके आंसर्स दे रहे हैं, वो टिक मार्क्स। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं जो आपसे रिलेटेड होंगे, आपको उसका आंसर देना है। सच एज तो व्हाट इज योर जॉब, जॉब आप बता सकते हो क्या है आपकी। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एज ए स्टूडेंट इन विच क्लास डू यू रीड और डू यू स्टडी, दैट यू कैन आंसर इट। आप उसको देख सकते हो, आप उसको बता सकते हो, क्यों आप भी बता सकते हो। तो ये स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चंस होते हैं कुछ वहां पर। अब जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट होकर मिलेगा, उसमें भी एक क्वेश्चंस और होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जहां पर आपकी ओपिनियन काउंट करती है। अब open ended questions mean the questions are asked regarding your view or point or opinion on the particular issue or subject। वो आपको 2 लाइन 4 लाइन जो भी लिखना पड़ सकता है। ये हर फॉर्मेट में, हर क्वेश्चन में नहीं होते, कुछ पे हो सकते हैं। as given in your book, what is your opinion about this year's budget of the central government। क्या स्पेसिफिक और ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यहां पर ओपिनियन काउंट कर। दिस इज द क्वेश्चनियर्स टू बी फ्रेम्ड और ड्राफ्टेड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द पीपल on the first hand, which is called collection of primary data। Likewise, secondary data is to be collected। Then what are the sources of collecting the secondary data? As we know, secondary data is collected not directly from the respondent, but it is collected from the sources where it is already recorded or collected। That is called some outside agencies, and that is collected from the some agencies who have already kept in record।
or the certain some organizations from where you can get that information as it is recorded over there in their internal records or reports. So secondary data can be obtained from the two sources basically, that is called published sources and unpublished sources. Published sources mean the publication of various organizations. That several organizations are there in India working under the control by the government, either state or central, local government also, that is municipality. Time to time they publish their reports in the newspapers or in their booklets. That is the publications of various informations. Companies are also publishing their reports in the annual general meeting, the annual reports. This publications includes the government publications also, such as economic survey, census of India reports, publication of national sample survey, reports of RBI, and annual report of the currency and finance, annual survey of industries, agricultural statistics of India. So many. Reserve Bank of India also publishes the bulletin time to time. Food Corporation of India. So many organizations are there who publishes its reports. Sometimes it is published in the newspaper also. Sometimes it is available in their offices. One can get and go and obtain there from there. The second is called unpublished sources. Some reports are there, some informations are there which are not published by these organizations, but that is available in their internal records or internal reports. That is called unpublished data as well. Such as trade unions, chamber of commerce, individual scholars, trade associations, etc., universities, they are having their own reports, and one can get the information from there. That is not published in the newspaper or certain bulletins or books. This is called source of obtaining the secondary data. So now we learn how to collect the primary data and secondary data. Now next we will study the techniques and methods of data collection, organization of data, and classification of data. It is enough for today. Thank you.